ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹੌਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਡੇਰਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਵਡੇਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਵਡੇਰਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਧੂ ਵਡੇਰਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਡੇਰਾ, ਰਜਨੀ ਵਡੇਰਾ, ਗੀਤਾ ਕੋਹਲੀ, ਹਰੀਸ਼ ਕੋਹਲੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਵਡੇਰਾ, ਸਾਰਿਕਾ ਵਡੇਰਾ, ਰਾਜੀਵ ਵਡੇਰਾ, ਰਜਨੀ ਵਡੇਰਾ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਵਡੇਰਾ, ਰਿਤਿਕ ਵਡੇਰਾ, ਤਾਲਿਸ਼ ਵਡੇਰਾ, ਕੁਸ਼ ਵਡੇਰਾ, ਸੇਜ਼ਲ, ਮੁਸਕਾਨ, ਵੈਭਵੀ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਟਲ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਲੇਸ, ਡਾਂਗੂ ਰੋਡ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਧੂ ਵਡੇਰਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੀਲਾ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1953 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵਕੀ ਨੰਦਨ ਵਡੇਰਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਡੇਰਾ, ਗੀਤਾ ਕੋਹਲੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਵਡੇਰਾ, ਰਾਜੀਵ ਵਡੇਰਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੇ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਉੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਾਰਬਲ ਹਾਊਸ, ਰਿਤਿਕ ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਬਲ ਹਾਊਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਧੂ ਵਡੇਰਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਧੂ ਵਡੇਰਾ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ, ਰਿਤਿਕ, ਤਾਲਿਸ਼, ਕੁਸ਼, ਸੇਜ਼ਲ, ਮੁਸਕਾਨ ਅਤੇ ਵੈਭਵੀ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। Ram Ram Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram,
इस मौके ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। आज हम जिस पुण्य आत्मा श्रीमती मधु वडेरा जी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री देवकी नंदन वडेरा जी को श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मैं डॉक्टर ठुकराल आप सबसे सविनय निवेदन करता हूँ कि उस पुण्य आत्मा की शांति के लिए मेरे साथ सब 3 बार जय श्री राम का उच्चारण करेंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अभी अभी अमृतवाणी का पाठ हुआ, उसमें राम नाम का उच्चारण हुआ। कहते हैं श्री राम भजो सुख में दुख में, श्री राम का नाम न्यारा है, वो कष्ट मिटाने वाला है और सब ही दुखों में सहारा है। कि श्री राम भजो सुख में दुख में, श्री राम का नाम न्यारा है, ये कष्ट मिटाने वाला है और सब ही दुखों में सहारा है। हमने अभी अभी इतना राम नाम का उच्चारण किया, लेकिन क्या कभी किसी ने विश्लेषण किया है कि जो राम नाम जिसका हम जाप करते हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसकी हम सुबह शाम पूजा करते हैं, उनका जीवन क्या सुखों से भरा था? नहीं, उनका जीवन पूरा दुखों से भरा हुआ था। शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने जीवन में दुख ही दुख देखे, लेकिन फिर भी हम उन्हें भगवान कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका सिमरन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मर्यादाओं का पालन किया। जो लोग अपनी मर्यादाओं का पालन करते हैं, समाज में उनका एक अलग से स्थान बन जाता है। और ऐसे ही थे हमारे बहन जी मधु वडेरा जी, उन्होंने भी अपनी मर्यादाओं का पालन किया। जिन्होंने जीवन भर अपनी मर्यादाओं का पालन करने के साथ साथ धार्मिक विचारों वाले संस्कारी थे। दान पुण्य करना, जरूरतमंदों की सेवा करना उनका प्रथम कर्तव्य होता था। उनके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया था। उन्होंने अपने बेटों राजेश, दिनेश और राजीव को भी अच्छे संस्कार दिए और बेटी गीता को अच्छी शिक्षा दी और नम्रता सिखाई। सारी अच्छी माँ वाले फर्ज उन्होंने निभाए। माँ क्या होती है? जो मुंह से निकाल के है निवाला खिलाती, जो मुंह से निकाल के है निवाला खिलाती, बच्चा रोता चुप कराती, बच्चा हंसता मुस्कुराती, जीवन की ऊंच नीच उसको सिखलाती, उसके दुखों पे कुर्बान करती अपनी जान है। वही तो दुनिया में होती सबसे प्यारी माँ है, सबसे प्यारी माँ है, सबसे प्यारी माँ है। माँ के 3 रूप होते हैं। भगवान कहता है कि मैं दुनिया पे नहीं आ सकता, लेकिन माँ के रूप में भगवान को भेजा था। उसके 3 रूप हैं। जब वो शिक्षा सिखलाती है तो माँ सरस्वती बन जाती है, और जब आपके घर में धन एकत्र करती है और माँ लक्ष्मी बन जाती है। तो जब आपको गलत बात पे डांटती है तो माँ दुर्गा का रूप बन जाती है।
भगवान धरती पर नहीं आ सकते, इसलिए वो माँ को भेजता है। पर आज हम सब दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? सुख और दुख है क्या? सुख है कि अगर काम हमारी इच्छा के अनुसार होता है तो हमारा सुख है, और इच्छा के विपरीत होता है तो हमारा दुख है। आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उनको श्रद्धा से भेंट करने के लिए, लेकिन दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि किसी की इच्छा नहीं थी कि वो हमें छोड़कर चले जाएं। लेकिन कहते हैं ना, भगवान की मर्जी अगे जोर नहीं चलता। भगवान की इच्छा है हुई सी कि जो आया है उसने जाना तो है। लेकिन हमारे बीच में रोहित पुरी जी MC परिवार के साथ कुछ व्यक्त करने के लिए आए हैं। मैं परिवार की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। भगवान की इच्छा के आगे जोर नहीं चलता। क्यों कहा जाता है कि भगवान का बना हुआ शरीर भगवान में मिल गया? भगवान की इच्छा ऐसी थी क्योंकि इंसान का जो शरीर है जिन 5 तत्वों से बनता है, वो ही 5 तत्वों का भगवान का शब्द है। आप ध्यान से गौर कीजिए। बा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर, और यही 5 तत्व हैं जिनसे इंसान का शरीर बनता है। तभी तो कहते हैं ना कि भगवान का बनाया हुआ भगवान में मिल गया। तो हमें सिवाय बर्दाश्त करने के और कोई हल नहीं है, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि संसार का जो नियम है वो ऐसा ही है। और इसलिए मैं सभी से निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु नाम का स्मरण करो, क्योंकि वो जीवन में साथ जाएगा। हमारे बीच में तरुणपाल सिंह जी शंटी परिवार के साथ जो करने गया है, और उनका धन्यवाद करता हूँ। सतीश महाजन जी जिन्हें शानी कहा जाता है, वो परिवार के साथ जो करने गया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो कहते करेंसी इतनी नहीं चलती। कहता क्यों? कहता आस्ट्रेलिया की इंडिया नहीं चलती, इंडिया की पाकिस्तान नहीं चलती, पाकिस्तान की दुबई नहीं चलती, ये करेंसी इतनी नहीं चलती। कहता फिर कि करेंसी चलती है? कहता चित्रगुप्त में जाकर कुछ, वो चित्रगुप्त के पास जाता है, उससे बोलता है महाराज मैं समान लैन गया तो कहते करेंसी नहीं चलती, इतनी कि करेंसी चलती है? कहता किसी का जे तू भला किया जिंदगी के विच, जे तू कोई पुण्य दान किया वो करेंसी इतने चलनी है। कहता फिर देखो उन्हें खाता देखा, कहते भाई एक बार तू एक स्टेशन के उत्ते गरीब आदमी को 10 रुपये की रोटी खवाई सी, वो 10 रुपये है तेरे लै जा तो जो मर्जी ले ले। वो 10 रुपये उत्थों लैके बाहर जाता है तो कहता जी 2 केले मिलने, कहता बाकी टाइम कितना निकलेगा? कहता भी उदों सोचना सी पहला इकट्ठा करने वास्ते। इस करके कहते ना 2 सांसों का जीवन तेरा, बजे तू हरि नाम, क्या पता इस जीवन की कब हो जाएगी शाम। लेकिन मैं कहता हूँ कि 2 सांसों का नहीं, ये एक ही सांस का जीवन है। अगर सांस आ गया जहाँ हम बैठे हुए हैं तो इहलोक, और नहीं आया तो परलोक। कहते हैं परलोक से आ गया। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि सांस नहीं आई तो परलोक। अभी आप सब मुझे सुन रहे हैं, अभी अभी मैंने अपना नाम भी बोला कि मैं डॉक्टर टुकराल बोल रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं बोल रहा। मेरे बीच में जो ईश्वर का अंश है, जो ईश्वर का अंश मेरे बीच में है। अभी हमारे बीच में भारत महाजन जी भोपाल मंडल खानपुर जिला प्रभारी परिवार के साथ उपयुक्त करने के लिए आए हैं, और उनका परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। छावड़ा साहब आए, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। तो तभी तो कहते हैं कि सांस आ गया तो ये लो, नहीं आया तो पर लो। मैं भी बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा, मेरे अंदर जो भगवान का अंश विराजमान है उससे मेरी आवाज़ निकल रही है। अभी अगर इसी समय मेरे बीच में इसमें निकल जाते हैं, मैं यहीं खड़ा खड़ा गिर जाऊँगा, तो किसी ने नहीं कहना डॉक्टर टुकराल नहीं किया ना, डॉक्टर टुकराल की बॉडी हो गई, उसी समय वो ख़त्म हो जाना है। आने रामपाल जी आए हैं, मैं परिवार की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ, दुख व्यक्त करने के लिए शामिल हुए। हमारे बीच में और भी महानुभाव आए हैं, सबको बोलने के लिए समय नहीं दिया जा सकता। हमारे बीच में पन्नालाल भाटिया जी मेयर आए हैं,
आशीष विज जी आए हैं, राजकुमार शर्मा जी जिला पठानकोट प्रधान PWD जेई आए हैं, प्रदीप मनाज जी हरियाली सरपंच वो आए हैं, जुगल किशोर MC आए हैं, सुनील पांडे जी आए हैं, राकेश बबली MC आए हैं। मैं सभी का परिवार की तरफ से यहाँ आने से धन्यवाद करता हूँ। अब मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी वाणी को विराम देकर श्री सुखदेव वडेरा जी को कहूँगा कि वो 2 मिनट आन के अपने श्रद्धा सुमन करें। श्री सुखदेव वडेरा जी। मधु वडेरा जी के तौर पर आए हुए मेरे भैनों भराओं तो बच्चों, जोड़ा इस संसार से आया उन्हें जाना है, लेकिन कुछ बंदे यहो जी अपनी छाप छड्ड दिंदे ने जिन्होंने की याद किया जाता है। असी लोग भी उस गली पले बड़े हुए, देखा इस मधु अरोड़ा जी की मधु वडेरा जी की बहुत कुर्बानी सी। इन्होंने बड़ी मेहनत की अपने बच्चों, जे मैं कहा कि इन्होंने मर्दा वाला काम किया तो कहना घट नहीं होएगा। इन्होंने अपने बच्चे पढ़ाए लिखाए, बड़े 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 अच्छे संस्कार दिते। इन्होंने बच्चों ने उन्होंने काम से लाया, बड़ी मेहनत की इन्होंने बच्चों ने। तुसीं देखो अज तिने बेटे उन्होंने अपना अपने व्यापार बड़ा वधिया वखरा वखरा मुकाम बनाया हुआ है। कितने लोगों नाल उन्होंने मेल जोल है, अज समाज के विच उन्होंने नाम है। ये बच्चे ये मां ने सारा जो सिखाया, उन्होंने जो संस्कार दिते हैं, उसकी वजह के नाल ये किसी धार्मिक काम चो किसी भी काम के विच पिछे नहीं रहते, बढ़ चढ़ के चंदा दिंदे ने। और अज इन्हां दा समाज च ना है। ये देखो, क्योंकि एक औरत होती है जिहड़ी कि अपने घर नूं बनाती है, औरत ही जिहड़ी होती है अपने घर का बर्बादी कर देती है। ये औरत सी जिसने अपने बच्चों नूं बनाने वास्ते बड़ी मेहनत की। और मैं सारे वडेरा परिवार वालों आए हुए सारे सज्जना का इत्थे आभार प्रकट करना है, जिन्होंने आके इन्हां बच्चों को हौसला अफजाई की है। मैं बच्चों तो कहना है, कोई भी तो काम होए, रात बरात होए, असी तुहाडे दुख सुख से खड़े हैं। ओम शांति। और मैं नरेश शर्मा जी से कहूँगा 1 मिनट। हमारे बीच में भूतपूर्व कैबिनेट मिनिस्टर मास्टर मोहन लाल जी आए हैं, परिवार के साथ व्यक्त करने के लिए उनका भी धन्यवाद करता हूँ। पठानकोट व्यापार मंडल से चेयरमैन अनिल महाजन जी आए हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आज असी सारे वडेरा परिवार के बहुत बहुमूल्य इंसान इस दुनिया को जाने के बाद उन्होंने शोक सभा के बैठे हैं। जदों किसी बंदे का एटीट्यूड एंड एटीट्यूड समाज के ठीक होता है, हर इंसान कोशिश करता भी उसदे नाल जुड़न दी। आदरणीय वडेरा जी साडे कंट्रैक्टर ने डिपार्टमेंट के बहुत अच्छे इंसान, और नैचुरली जितों इन्हां दी उत्पत्ति हुई है वो भी अच्छे इंसान होंगे। इंसान इस दुनिया के उत्ते आया, कहा जाता कि मां का रूप जो सारे तो बड़ा बहुमूल्य है। एक साइंटिफिक रिसर्च होने अमेरिका दे विच हुई है कि एवरी सिंगल पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स इज हैविंग इट्स ओन इंटैलिजेंस। इसका मतलब की है, कण कण दे विच प्रभु विराजमान है, जिहड़ा भगवान कृष्ण ने अज तो 23,000 साल पहला जिहड़ा कहता है। माता जी का नाम लैन तो बाद ईवन के जानवर भी जिहड़े ना वो भी अपना मां का नाम लेंदे ने। इंसान तो एक बहुत ही बड़ी चीज है। माता श्री के बारे जिन्ने वेद शास्त्र जिन्ने साडे धार्मिक ग्रंथ ने, मेरा ख्याल है भी अधूरे ने जिन्होंने माता का गुणगान नहीं किया। और कहा जाता है कि आज जिस तरह तुसी लास्ट सभा दे विच शामिल हो, इहदे बाद इस त्रिकुटी दे विच जिहड़ी आत्मा साडी विराजमान है, ब्रह्मन बैकुंठ धाम की यात्रा अज तो बाद शुरू हो जाती है। उन्नी देर तक वो इंसान जिहड़ा अपने घर के द्वारे चक्कर लगाता घर दे विच विराजमान रहता है। और साइंटिफिक ट्रुथ है, क्वांटम एनर्जी के मुताबिक झुंडां की फॉर्मेशन दे विच जिहड़ा ना ये ट्रैवल करता है बैकुंठ धाम की यात्रा दे विच। इट इज साइंटिफिक प्रूवन। और कर्मों में मानसिक कर्मां दे नाल संबंध है उस गल दा,
कि प्रभु ने उस आत्मा नूं किते लैके जाना है, दोबारा पुनर जन्म जिहड़ा देना इस दुनिया ते जां नहीं, वो कर्मां दे नाल जुड़िया। छोटी जी गल करन तो बाद मैं अपनी बाणी नूं विराम देना। ये साइंटिफिक तौर पे प्रूव होया कि जिथे भगती के द्वारा माता पिता रहिंदे ने, उस कमरे का उस घर का जिहड़ा ना एक एक कण जिहड़ा चार्ज हो जाता। इट इज साइंटिफिक प्रूवन। मैं कोई हाइपोथेटिकली गल नहीं कर रहा। जिथे माता पिता भगती दे नाल कर्म अपने करते हैं, जिस परिवार दे विच ਜਿਹੜੇ बच्चे भी उस घर दे विच रहणगे, उन्हां दा शरीर सिंक्रोनाइज हो जाएगा, वो उत्थे खुशी महसूस करनगे। इसे कारण ही माता दे आंगन दे विच जाके हर बच्चा जिहड़ा खुशी महसूस करता है। और ये प्रूव होया कि छोटे छोटे रेत के कण भी जिहड़े कमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, वो चार्ज हो जाते हैं माता पिता की भगती के नाल। ये बहुत बड़ी गल है। ਅੱਜ ਨਰਾਦਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਨਣਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਸਿਰਫ 7 ਬੰਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀਗੇ और उन्होंने कंधा देने वाला कोई नहीं सी। मैं समाज के लोगों को पूछा भी इस बंदे ने गलती की है भी 40 करोड़ का मालिक होने के नाते इनू 4 बंदे चुकने वाले नहीं है। और कहने लगा इन्हें कोई बंदे के पुत्र वाला काम समाज च नहीं किया, ना कोई सोशल काम किया, ना समाज की सेवा की है, ना समाज का उद्धार किया है। आओ इन्हां महान शख्सियतां के दर्शन करने तो बाद ये गल असीं समाज च कह सकते हैं कि बडेरा परिवार ने अपने माता पिता का गुणगान बहुत किया है। और माता और एक गल हो रही नाल सारे तो बड़ा इंसान का मणिपुर चक्कर जिहड़ा धुनी साडी विराजमान है, माता का संबंध उस वेले स्टार्ट हो जाता जो मां के कुख दे विच उहदा नाम पैदा है। और साइंटिफिक तौर के उत्ते प्रूव होया कि साडे धुनी के थल्ले पत्थर जिहड़े ना सूक्ष्म कण जिहड़े विराजमान ने, जे माता पिता नूं दुख दिओगे तुहाडे वो कण जिहड़े जागृत नहीं हो सकते, जिहड़े मर्जी गुरु की शरण च चले जाओ। इस कारण प्रेरणा देना चाहना, समाज को भी एक चेतावनी देना चाहना कि चखना चाहते हो जहर का स्वाद तो अपने आस्तीन में सांप पालिए, खुद को इतना मत उछालो कि कहीं जमीन से ताल्लुक ना खत्म हो जाए। रामायण में लिखा जहां पर कृपा राम की होए उस पर कृपा करे हर कोई। गुरु ग्रंथ साहब से लिखा लख खुशियां पाशाई जे सब को नजर करे। गुरु महाराज की बाणी के विच जो कुछ विराजमान है, माता पिता तो उत्ते कोई नहीं हो सकता। लास्ट के विच सर मैं एक सेकंड लेना, लास्ट के विच एक होर ज्ञानवान सारे बुद्धिजीवी समाज के पठानकोट से बैठे ने। एक नवी रिसर्च हुई है कि जिहड़ा टेक्सचर ऑफ द सैल्स, माता के जिहड़े सैल जाना ज्यों-ज्यों माता की एज बढ़ती जाएगी उदा दे सैल्स की टेक्सचर जिहड़ा ना स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। ये बंदा ते एवें भुड़कदा फिरदा समाज सारिਆਂ तो महान इस दुनिया के उत्ते सिर्फ माता पिता बाद दे विच आंदा जी। जेड़ा टेक्सचर है सैल्स का टेक्सचर ज्यों-ज्यों एज बढ़ेगी माता के सैल्स की टेक्सचर जिहड़ा होर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और बंदे का जिहड़ा टेक्सचर है सैल्स का वो घटने वाले पासे नूं तुरदा जाएगा। इस कारण आओ माता नूं नमन करिए क्योंकि इस तरह के शख्सियत लभदे नहीं। मैं भी समाज दे विच फिरदा, किसी के बच्चे ने मां प्यो नूं बाहर कढिया, किसी ने आश्रम च भेजा, गल्लां बहुत सारियां करते हैं लेकिन करतूतां उन्हां दियां कोई नहीं। इस कारण मैं बडेरा परिवार को नमन करदा और खास करके साडे कॉन्ट्रैक्टर बडेरा जी लोगों के विच विचरदे ने, समाज च सेवा करते हैं, माता पिता का मान सम्मान किया। आओ परम पिता परमेश्वर अगे दुआ करिए कि इन्हां नूं बैकुंठ धाम दे विच विराजमान करो और इस परिवार को जिहड़ा उत्थों आशीर्वाद मिलना चाहिए। जय श्री राम। हार्ट मिक्स प्लांट यूनियन माझा जोन तो पंजाब के प्रेजिडेंट रमेश चोपड़ा जी, बलविंदर सिंह जी वालों शोक संदेश आया है। लाल चंद कटारू चक जी जिहड़े कि मिनिस्टर ने उन्होंने वालों शोक संदेश आया है। कबूती शर्मा जी जिहड़े एसएलए चेयरमैन ने उन्होंने वालों शोक संदेश आया है। अश्विनी शर्मा प्रेजिडेंट एमएलए ने उन्होंने वालों शोक संदेश आया है। गौ सेवा समिति वालों शोक संदेश आया है। डेरीवाल गौशाला तो शोक संदेश आया है। रेडीमेड होलसेल यूनियन को शोक संदेश आया है। पठानकोट जिला केमिस्ट एसोसिएशन और शोक संदेश आया है।
ਹੇਰੀਵਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਗਊ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਮਨਮਹੇਸ਼ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਪਾਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਵੈਮ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਐਲੂਮਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ शोक संदेश आया। अलमिनी एसोसिएशन आर्य बॉयज स्कूल जलोधी रोड पठानकोट में शोक संदेश आया है। जिला पार मंडल पठानकोट वालों इंद्रजीत गुप्ता जी वालों शोक संदेश आया है। उड़ान एजुकेशन सोसाइटी वालों शोक संदेश आया है। शांत कुमार चड्डा जी जिहड़े कि सीनियर सैनेटर है यूनिवर्सिटी के गुरु नानक देव जी उन्होंने वालों शोक संदेश आया है। MES बिल्डर एसोसीएशन वालों शोक संदेश आया है। हार्ट मार्क्स मैं बोल चुका देना। तो पार मंडल पठानकोट वालों शोक संदेश आया है, जिन्हें प्रेजिडेंट अमित नैयर जी ते उन्होंने नाल सीनियर श्री LR सोडी जी आए ने। मैं उन्होंने दोनों का इतने आने का धन्यवाद करता हाँ। पठानकोट पार मंडल वालों मनिंदर सिंह लक्की, अनिल महाजन जी चेयरमैन आए। अमित विज जी MLA ex-MLA वालों शोक संदेश आया है। कृष्ण कृपा परिवार वालों शोक संदेश आया है, जिहदे के साढ़े बिट्टू भैन जी खुद आए ने इत्थे परिवार के नाल दुख व्यक्त करने वास्ते। मैं इत्थे आए हुए सारी सज्जनां दा धन्नवाद करता हाँ। इस अंतिम प्रार्थना सभा च उपस्थित भैन और भराओ, बहुत सारिया गल्लां बड़े बड़े विद्वान लोगों ने कही हैं, क्योंकि समय हो गया। मैं सिर्फ और सिर्फ तुहाडा धन्नवाद करना। इस वडेरा परिवार नाल तुसीं अपनी हमदर्दी जाहिर करने वास्ते आए हो और इन्नी संख्या च आए हो, अपना कीमती समय कढ़ के आए हो, इस परिवार को सांत्वना देने वास्ते आए हो। आप सब का बड़ा मेहरबानी। जीते बसते रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो और यहो जी मौके जिन्हों की जान की रीत पालो अपने दिल और दिमाग से कि मृत्यु के उत्ते असीं जाना जरूरी है। सुख से जाइए ना जाइए, पर यहो जे गमगीन मौके से जरूर जाइए, ताकि जो परिवार एक बड़े उज्जवल सदस्य तो वंचित हो गए हैं, उस परिवार को हौसला मिले। तुहानूं देख करके इस परिवार को बहुत सारा हौसला मिलेगा। एक बार फिर तुहाडी मेहरबानी।